تمہاری بیٹی نے بچہ جان بوجھ کر ابورٹ کروایا ہے۔ نہیں، یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں۔ بند کرو یہ ڈرامے، اب بس تھوڑا سا انتظار کر لو، ابھی میرا بیٹا آئے گا اور تمہاری بیٹی کو تمہارے ساتھ ہی رخصت کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائمہ بیگم کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے منع کیا تھا تمہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے علی حسن۔ اگر میری بیگم نے کچھ زیادہ بول دیا تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ میں علی حسن ہوں، زارون کا والد اور موہنی کا سسر۔ آپ کیسی ہیں بہن جی؟ میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ آپ نے ابا کو سب بتا دیا کیا؟ ہاں بیٹے، اس لیے تو پوری بات سنے بغیر ہی چلے گئے۔ تو جانتا ہے کہ میری بیٹی نادان ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا تکلیف ہے۔ تو اس نادان کو ہدایت کی راہ دکھا، اسے معاف کر دے۔ خاموش دریا کا راز۔ ایک گاؤں کے قریب ایک دریا بہتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پانی کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ لوگ اسے خاموش دریا کہتے تھے۔ ایک دن 17 سالہ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا راز معلوم کرے گا۔ وہ دریا کے کنارے چلتا ہوا ایک غار تک پہنچا۔ غار کے اندر ایک پتھر پر لکھا تھا، جب انسان دوسروں کی آواز سننا سیکھ جائے تب اسے اپنی حقیقت سنائی دیتی ہے۔ بلال نے آگے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ وہ کئی سال سے اکیلا رہ رہا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ بلال اس کے پاس بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ بوڑھے نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے برسوں پہلے اپنے دوست سے غلط فہمی کی وجہ سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ بلال نے اسے اپنے دوست کو تلاش کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ دن بعد دونوں دوست دوبارہ ملے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لی۔ اسی رات بلال دوبارہ دریا کے پاس گیا۔ اس بار دریا کا پانی پہلے سے زیادہ صاف تھا اور پہلی مرتبہ اسے پانی کی خوبصورت آواز سنائی دی۔ بلال حیران رہ گیا۔ غار کے پتھر پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، کبھی کبھی دنیا خاموش نہیں ہوتی، ہم سننا بھول جاتے ہیں۔ بلال مسکرایا اور گاؤں واپس آ گیا۔ سبق: دوسروں کو توجہ سے سننا رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ستارہ خاموش دریا کا راز۔ ایک گاؤں کے قریب ایک دریا بہتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پانی کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ لوگ اسے خاموش دریا کہتے تھے۔ ایک دن 17 سالہ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا راز معلوم کرے گا۔ وہ دریا کے کنارے چلتا ہوا ایک غار تک پہنچا۔ غار کے اندر ایک پتھر پر لکھا تھا، جب انسان دوسروں کی آواز سننا سیکھ جائے تب اسے اپنی حقیقت سنائی دیتی ہے۔ بلال نے آگے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ وہ کئی سال سے اکیلا رہ رہا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ بلال اس کے پاس بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ بوڑھے نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے برسوں پہلے اپنے دوست سے غلط فہمی کی وجہ سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ بلال نے اسے اپنے دوست کو تلاش کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ دن بعد دونوں دوست دوبارہ ملے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لی۔ اسی رات بلال دوبارہ دریا کے پاس گیا۔ اس بار دریا کا پانی پہلے سے زیادہ صاف تھا اور پہلی مرتبہ اسے پانی کی خوبصورت آواز سنائی دی۔ بلال حیران رہ گیا۔ غار کے پتھر پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، کبھی کبھی دنیا خاموش نہیں ہوتی، ہم سننا بھول جاتے ہیں۔ بلال مسکرایا اور گاؤں واپس آ گیا۔ سبق: دوسروں کو توجہ سے سننا رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ستارہ خاموش دریا کا راز۔ ایک گاؤں کے قریب ایک دریا بہتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پانی کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ لوگ اسے خاموش دریا کہتے تھے۔ ایک دن 17 سالہ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا راز معلوم کرے گا۔ وہ دریا کے کنارے چلتا ہوا ایک غار تک پہنچا۔ غار کے اندر ایک پتھر پر لکھا تھا، جب انسان دوسروں کی آواز سننا سیکھ جائے تب اسے اپنی حقیقت سنائی دیتی ہے۔ بلال نے آگے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ وہ کئی سال سے اکیلا رہ رہا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ بلال اس کے پاس بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ بوڑھے نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے برسوں پہلے اپنے دوست سے غلط فہمی کی وجہ سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ بلال نے اسے اپنے دوست کو تلاش کرنے کا مشورہ دیا۔
कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा।
वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी।
बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था।
वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया।
सबक, दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक, दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक, दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक, दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा, खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा।
बूढ़े ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा। खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। लोग इसे खामोश दरिया कहते थे। एक दिन 17 साला बिलाल ने फैसला किया कि वो इसका राज मालूम करेगा। वो दरिया के किनारे चलता हुआ एक गार तक पहुंचा। गार के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब इंसान दूसरों की आवाज़ सुनना सीख जाए तब उसे अपनी हकीकत सुनाई देती है। बिलाल ने आगे देखा तो एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो कई साल से अकेला रह रहा था और किसी से बात नहीं करता था। बिलाल इसके पास बैठ गया और खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और बताया कि इसने बरसों पहले अपने दोस्त से गलतफहमी की वजह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। बिलाल ने उसे अपने दोस्त को तलाश करने का मशवरा दिया। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। उसी रात बिलाल दोबारा दरिया के पास गया। इस बार दरिया का पानी पहले से ज़्यादा साफ था और पहली मर्तबा उसे पानी की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। बिलाल हैरान रह गया। गार के पत्थर पर एक नया जुमला लिखा था, कभी कभी दुनिया खामोश नहीं होती, हम सुनना भूल जाते हैं। बिलाल मुस्कुराया और गांव वापस आ गया। सबक: दूसरों को तवज्जो से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है और बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर सकता है। सितारा सितारा।
खामोश दरिया का राज। एक गांव के करीब एक दरिया बहता था, मगर अजीब बात यह थी कि इस